एंड इंट्रोडक्शन में एक बार करवा देता हूँ। रिया पोलरा, स्टूडेंट ऑफ विद्या मंदिर स्कूल, नॉर्थ गुजरात फर्स्ट इन 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन 12th स्टैंडर्ड। પછી હેમાક્ષી વ્યાસ, જે ગયા જ વર્ષે 12th સ્ટાન્ડર્ડ ક્લિયર કર્યું, સીએ ફાઉન્ડેશન ક્લિયર કર્યું એન્ડ નાવ શી ઇઝ ઇન સીએ ઇન્ટર, બરોબર છે. પછી નિયતિ મોઢ, અગેન નોર્થ ગુજરાત ફર્સ્ટ પ્રીવિયસ યર, જે આપણે બોર્ડની એક્ઝામ થઈ એમાં નોર્થ ગુજરાત ફર્સ્ટ છે અને અત્યારે એ સીએ ઇન્ટરમાં છે. દેન ગુંજન શાહ, એને પણ તમે બધા ઓળખો જ છો, ઠીક છે. A1 કહેવાય છે, છોકરાઓમાં A1 ઓછા આવે છે, પણ આપણી પાસે એમાં પણ એક્ઝામ્પલ છે. મિત કૌશિક, ઠીક છે, વન ઓફ ધ બ્રિલિયન્ટ માઇન્ડ વી કન્સિડર. મહેનત ઓછી પણ રિઝલ્ટ હંમેશા ઉપર જ હોય, ઠીક છે. તો વન બાય વન પહેલાં તો એમણે કઈ રીતે તૈયારી કરી છે અને એમને તમને શું કહેવું છે, બરોબર છે, એ તમને કહેશે. આફ્ટર દેટ વિલ ટેક ક્વેશ્ચન આન્સર્સ, બરોબર છે. કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો અમે અહીંયા નહીં હોઈએ, અમે બહાર જતા રહીશું એન્ડ યુ કેન આસ્ક વન ઓન વન, બરોબર છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. સો કેવી ચાલે છે તૈયારી? 20 days ટુ ગો, રાઈટ? બહુ બધું પ્રેશર હશે જે ના હોવું જોઈએ. હવે આ 20 દિવસ ચીલ કરવાની છે, બટ સારી રીતે ચીલ કરવાની છે, બિકોઝ તમે બહુ બધું વાંચી લીધું હશે અત્યાર સુધી. હવે ખાલી તમારે રિવિઝન. ઓકે, સ્માઇલ આઈ, દેટ મીન્સ લોકોને બાકી છે પોર્શન કરવાનો, રાઈટ? ઓકે ઓકે, ઓલ કુલ. સો કેટલા લોકો A1 એમ કરી રહ્યા છે અત્યારે? A2? કેટલા લોકોને A2 માંથી A1 માં ટ્રાન્ઝિશન જોઈએ છે? ઇફ બોર્ડની એક્ઝામમાં મેમરાઇઝેશન સિવાય તમને કંઈક બીજું પૂછશે ત્યારે કન્સેપ્ચ્યુઅલ વે તમને કામ લાગશે. અધરવાઇઝ તમે લોકો સ્ટક થઈ જશો કે તમારે શું લખવાનું છે, રાઈટ? અને કન્સેપ્ચ્યુઅલી તમને ખાલી બોર્ડ એક્ઝામ માટે નહીં, આગળ બી કામ લાગશે. આફ્ટર 12th તમારે કન્સેપ્ટ પર જ કામ કરવાનું છે. સીએ જશો, કોઈ બી પ્રોફેશનલ સ્ટડીઝ, એની સ્ટડી વુડ બી બેઝડ ઓન કન્સેપ્ચ્યુઅલ ઓનલી. સો અગર તમે કન્સેપ્ચ્યુઅલી સ્ટડી કરો છો તો એ લોકો કહેશે કે કન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્ટડી કરવામાં તમારા એફર્ટ્સ વધારે જશે. એવું નથી હોતું. ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય શું છે, ઇક્વિલિબ્રિયમ ક્યાં લાઈ કરવાનું છે, વન્સ યુ અન્ડરસ્ટુડ દેટ, એના પછી તમને ક્યાંય બી એના વિશે કોઈ બી ક્વેશ્ચન પૂછે તમને ખબર હશે, રાધર દેન તમે મેમરાઇઝ કરો છો, રટોફાઈ કરો છો કે આવી રીતે કામ કરશે, આવી રીતે કામ કરશે. તમને 2 દિવસ યાદ રહેશે, પછી તમે ભૂલી જશો. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સેપ્ટ પર તમે ફોકસ કરજો. સેકન્ડલી કે બુક, ઓલવેઝ રીડ બુક, બિકોઝ અગર પેપર ડિફિકલ્ટ નીકળશે તો એ ડિફિકલ્ટ નહીં હોય, બસ એ મે બી જે ડાયજેશન છે એના કરતાં કંઈક અલગ ક્વેશ્ચન બનાવીને પૂછ્યો હશે તો ફેરવીને પૂછ્યો હશે. તમે બુક વાંચેલી હશે તો તમને એ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. કમ્પ્યુટરમાં જે લોકો લાઈક A1 એમ કરી રહ્યા છે અને જે બી ટ્રાન્ઝિશન બી કરવું છે એ લોકો કમ્પ્યુટર માટે બી બુક વાંચો. 2022 ના મારા જે હતું યર, એની અંદર કમ્પ્યુટર માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ પેપર નીકાળેલું. ડિફિકલ્ટ એવા ટર્મ્સમાં હતું કે જે બી પાસ્ટ એક્ઝામ ક્વેશ્ચન્સ હતા એ રિપીટેટિવ નહોતા, બુકમાંથી નીકાળી દીધા હતા. સો બુક વાંચેલી હશે તો તમે એ વસ્તુનું સોલ્વ ઇઝીલી કરી શકશો. થર્ડલી કે તમને લોકોને ફિયર હશે એક્ઝામનો, રાઈટ? લોટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ થિંક કે 20 days બાકી છે અને અમે લોકો મે બી સરે જે રીતે કીધું કે તમારા લોકોની પ્રિલિમ પતી ગઈ છે, મતલબ રિટર્ન તમારી લોકોનું પતી ગયું છે પ્રેક્ટિસ. સો હવે તમને થતું છે કે ઇફ હવે બોર્ડની અંદર તમે વસ્તુ અટેમ્પ્ટ કરી શકશો કે નહીં. આઈ વુડ સે આનું સોલ્યુશન કન્સિસ્ટન્સી છે. કીપ ગોઈંગ. તમે જે રીતે પ્રિપેરેશન કરતા હતા એ રીતે ચાલુ રાખો. ફાઇન્ડ યોર એફિશિયન્ટ ટાઈમ ઇન અ ડે. સવારે સારી રીતે વંચાતું તો સવારે ચૂઝ કરો, રાતે તો રાતે. એને યુઝ કરો સારી રીતે અને કન્સિસ્ટન્ટ બનો. અને રિવાઇઝિંગ, સો જે બી પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ છે એમાં બી તમે સોલ્યુશન પ્રેક્ટિસ કરે રાખો. સો તમને ઓલરેડી કોન્ફિડન્સ આવી જશે લેવલનો કે હવે કોઈ બી ક્વેશ્ચન આવે હું અટેમ્પ્ટ કરી લઈશ. અને થિયરી સબ્જેક્ટ્સ લાઈક ઇકોનોમિક્સ અને OCM છે એમાં મે બી મેમરી બેઝ થોડું વધી જાય છે બિકોઝ ઇકોનોમિક્સમાં સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા વધારે છે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં. સો મેક શ્યોર કે તમે એને લાઈક પેપર પર નાખી દો અને એવરી ડે યુ આર લુકિંગ ટુ દેટ. સો એ તમારા દિમાગમાં આવી જશે. સ્ટુડન્ટ હુ હેવ કવર્ડ 60 to 70% પોર્શન, ઓકે, એ લોકોનો પ્રિપેર થઈ ગયો છે.
બાકીની વસ્તુ બાકી છે. યુ હેવ ટુ વેઝ. કાં તમે જે કરેલું છે એની અંદર એકદમ એવા એફિશિયન્ટ બનો કે એમાંથી કંઈ બી પૂછાય છે તો તમે એમાંથી તો 100% લાવશો, બરાબર? એટલું કોન્ફિડન્સ તમે બિલ્ડઅપ કરી શકો આ 20 ડેઝની અંદર. સેકન્ડલી, ઇફ યુ આર વેરી મચ કોન્ફિડન્ટ કે 60 to 70% પોર્શનમાં હું એકદમ પ્રો છું, ઓકે, તો હવે બાકીનો જે પર્સન્ટેજ વધે છે એની અંદર તમે એમાં બી તમે પ્રિપેરેશન ચાલુ કરી શકો છો. એવી રીતે કરો કે લાઈક MCQ છે, એવું ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપનું છે, એ તમારી જોડે ટાઈમ હોય તો એ તમે જોઈ લો, તો યુ કેન કવર એટલીસ્ટ 80% પોર્શન. અંડરસ્ટુડ? तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा. उसमें जैसे तुम्हें बोला गया वैसे लिखो. इंट्रोडक्शन लिखो, फिर मेन आंसर लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, जैसे तुम्हें सर ने बताया होगा. पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, तुम्हारी इंप्रेशन दिखाता है. और लैंग्वेज में क्या होता है कि इतनी एरर और ये सब नहीं करनी होती है. अच्छे से पेपर लिखो, अच्छे से प्रेजेंट करो, स्पीड रखो. इंग्लिश के पेपर में दिक्कत आती है स्पीड में, तो तुम ऐसा कर सकते हो, राइटिंग सेक्शन पहले लिखो. सेक्शन ए बी तो अंडरस्टूड है, हो जाएगा आराम से. पहले सेक्शन डी लिखो, सी लिखो, ये लिख लोगे तो आराम से तुम्हारा मेजोरिटी पोर्शन कवर हो जाएगा. उसके बाद तुम ए बी पर आओ, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब होता है, तो ये तुम कर सकते हो. बाकी ये है कि एंड मोमेंट पे पैनिक नहीं होना है. पेपर कैसा भी आए, हमें हमारा 100% देना है. और गुजराती में जैसे बोला कि पद्यार्थ ग्रहण में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो. क्वेश्चन पढ़ लोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या पूछना चाहता है. फिर तुम वो पोएम पे जाओ. पोएम तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. 2-3 बार पढ़ो, आराम से समझ आ जाएगा क्या कहना चाहता है, और अपनी लैंग्वेज में लिख लो. बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें जो है वैसा का वैसा लिखना है. और एंड मोमेंट पे इको, ओसी, एसपी, इन सब में हेड पॉइंट्स कर लो, उसको अच्छे से अंडरलाइन करो. और कंटेंट तो तुमने किया ही होगा, तो कंटेंट तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो. और हेड पॉइंट अच्छे से प्रेजेंट करो अंडरलाइन करके. पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए तुम्हारा, इससे तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ सकते हैं. मैं सबने स्टडी के रिलेटेड और एग्जाम के रिलेटेड बात की, मैं थोड़ा उससे हट के बात करूँगी अबाउट योर फिटनेस एंड हेल्थ. तो 10th की बोर्ड भी जब थी और 12th की बोर्ड, तो अकाउंट्स का पेपर मेरा फर्स्ट था. तो अकाउंट्स के पेपर के 2 घंटे पहले मुझे एकदम चक्कर आने लग गए थे और उल्टी होने लगे, बिकॉज मतलब बहुत टाइम बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसपे मतलब सब आपको देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो स्कूल लाइफ में. तो मुझे एकदम उल्टी होने लग गई थी और चक्कर आने लग गए थे. तो इट हैपेंस, बट मैंने उससे क्या सीखा है कि अपनी मेंटल हेल्थ एग्जाम्स के पहले सबसे ज्यादा जरूरी है. उससे भी अच्छी, उससे भी इम्पोर्टेंट तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है. सर ने मुझे बताया था कि मैं एग्जाम के लाइक 1-2 हफ्ते पहले भी मैं बाहर का खा रही थी, तो मुझे लगा उसमें कोई इशू नहीं होगा, बट इशू हुआ बाद में. मुझे पेट भी खराब हो गया और उल्टियां भी होने लग गई थी. तो सर ने मुझे बताया कि बाहर का खाना भी छोड़ दो. तो इफ यू हैव द विल पावर तुम छोड़ सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ एंड तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू कंट्रोल बिफोर योर एग्जाम्स. एंड मैं एक ओसी एंड इकोनॉमिक हर सब्जेक्ट के लिए एक बात बोलूंगी कि नो ऑफेंस टू एनीवन, सबने सही बोला है, बट ऐसा है तुम्हारा 70-80% पोर्शन कवर हो गया और 20% बाकी है. तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि 20% अब मत करना. 20 डेज पहले अगर तुम कुछ नया करने जाओगे, तुम्हारा पिछले वाला सब वाइप आउट होने लग जाएगा. मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही है. ओसी में हमारी 3 दिन की छुट्टी थी और मेरा लाइक स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा सा बाकी था. तो मैंने सोचा कि मैं वो एक बार देख लेती हूँ, हेड पॉइंट्स वगैरह कुछ. तो मैं वो करने लगी. एंड ओसी के एग्जाम के गेट के बाहर नील और मीत दोनों मेरे साथ थे. तो उन्होंने देखा कि मुझे अब ओसी में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मुझे सिर्फ स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग यही याद था, पिछला मुझे कुछ याद नहीं आया. तो इसलिए ओसी का पेपर मेरा थोड़ा 19-20 हो गया था. ओसी में मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए थे. दिस इज माय पर्सनल एडवाइस. बाकी सब ने अपने रैंक्स अच्छे ही लाए हैं, तो आप उनके भी फॉलो कर सकते हो. नो ऑफेंस टू एनीवन. सो या दैट्स ऑल. थैंक यू. हाय एवरीवन. मेरे को सब जानती है वैसे तो, लेकिन आई एम मीत कौशिक. और 20 दिन बाकी है आपकी एग्जाम्स में और थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी वाला होगा अभी. तो
मेहनत करते रहो अभी। और क्या कहते हैं कि अभी सब अंदर ऑफिस में आके सब डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़े जनरल डाउट्स निकले थे, कॉमन डाउट्स। तो सपोज इश्यू ऑफ शेयर्स था, मतलब अकाउंट्स के अंदर कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स में याद नहीं रहता है, और क्या कहते हैं कि अकाउंट्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट्स का प्रॉब्लम पड़ रहा है। तो सपोज अकाउंट्स तो चलो विशाल सर यहीं पे हैं, तो आपको ये कर सकते हो कि आप जब पढ़ रहे हो तो जो डाउट्स आ रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लो, या फिर आपके पास आपके दोस्त अगर वैसे हो, उनको आता हो तो उनसे कोऑर्डिनेट करके आप समझो। और क्या कहते हैं कि आपस में अगर कोऑर्डिनेट करके चलोगे सब, तो सबका रिजल्ट एनहेंस्ड आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर ऐसा मानोगे कि थोड़ा मतलब दब दब के रहोगे कि मैं पूछूंगा तो मैं थोड़ा छोटा दिखूंगा, ऐसा सब वगैरह वगैरह, तो वो सही अप्रोच नहीं है। मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, तो मेरा दोस्त है नील, जानती हैं सब, तो मतलब उसको दिक्कत रहती थी मतलब कॉन्सेप्ट्स में, तो मुझे पूछता था वो, और मुझे अगर कभी कोई दिक्कत रहती तो मैं भी उससे पूछता था। तो मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या कहते हैं कि हाँ, अपने जो पेपर पैटर्न है उसमें ऑप्शंस है, तो मतलब अब कुछ लोग ऐसा सोच के बैठे होंगे कि मतलब मैं ऑप्शन है तो मतलब मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा तो चलेगा इस तरीके से। लेकिन बोर्ड्स में ऐसा करते हैं कि मतलब इतना भी तुमको इतना इजी पेपर नहीं देंगे कि तुम सभी कुछ सपोज 7/5 लिखना है, हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि तुम 5/5 लिख ही सको। तुमने अगर पढ़ाई करी है स्टार्टिंग से अभी तक तो तुम ऑब्वियसली लिख पाओगे। और ऐसा मतलब लास्ट के 20 दिन थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलोगे तो ठीक है। मतलब पेपर सॉल्यूशंस करे, मतलब बहुत सारे पेपर सॉल्यूशंस करे ही ऑलरेडी, लेकिन और पेपर सॉल्यूशंस करे। गाला लिबर्टी है, उसमें से जो ऐसे क्वेश्चंस है जो बुक में नहीं है वो तुमने सॉल्व करे। और लास्ट टाइम में तो बुक ही सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है वैसे तो, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे ना तो बोर्ड में तुमको क्या हेल्प रहेगी। और क्या कहते हैं कि तुम उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और सपोज बोर्ड में कई बार ऐसा भी होगा कि तुम सपोज एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम, तो उसमें मेरे साथ भी दिक्कत रहती थी ऑनेस्टली बताऊं तो। वो तुम पढ़ रहे हो तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर तुमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करी है ना तो तुम उसके लगता लगता तो कुछ तुमको पता होगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट में कुछ था, तो तुम वो लिख लोगे तो तुमको तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि बोर्ड मतलब बहुत ही बुकिश नॉलेज प्रेफर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अपना दिमाग लगा के लिखोगे कॉन्सेप्ट के रिलेटेड तो तुमको मार्क्स देंगे, और मार्क्स आते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बस लास्ट टाइम में पढ़ते रहो यार, मेहनत करो। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सबने बोल ही दिया है, स्टडी टिप्स इतनी दे दी है तो ज़्यादा मैं एग्जेजरेट करके नहीं बोलूँगी। बट अभी आपकी जितनी प्रिपरेशन हुई है उस पर ही फोकस करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 60-70% भी किया है तो जितना किया है उसको एकदम परफेक्टली करो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करने जाएंगे तो हमें एक कह सकते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि नहीं कर, थोड़ा सा ये एंग्जाइटी हो जाती है अंदर से कि यार नहीं हो पा रहा है, फिर वो आपकी बोर्ड के एग्जाम्स में वो अफेक्ट करेगा। इससे बेटर है कि जितना किया है उसको उतना परफेक्ट करो, और कोई इतना मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के एग्जाम्स है, इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के एग्जाम्स है तो पहले तो PYQs कर लो अच्छे से, बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लो। एडिशनल मटेरियल सिर्फ सेक्शन A B के लिए लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्शन AB में ये लोग 1-2 क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं हर सब्जेक्ट में कि उससे हमारा पूरा पेपर अफेक्ट हो सकता है। इससे बेटर है कि सर ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है सेक्शन A B के लिए उसको कर लो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एक बुक अच्छे से रिफर कर लो, वो बहुत है। बैक एक्सरसाइज में से ऑलमोस्ट 70-80% बैक एक्सरसाइज में से ही आता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जितना किया है उतना अच्छे से करो। दूसरी चीज़ है कि सपोज कि आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो दोनों सर है ही, स्कूल में भी टीचर्स है, इतने सपोर्टिव हैं तो उनसे आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर सपोज कि कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ऐसा होता है हमको कि अभी मेरे को रात को कोई डाउट आ रहा है, तो मैं ऐसा होगा कि यार मैं कैसे पूछूं, अब सर भी अब अवेलेबल नहीं होते हैं 24/7 ऑब्वियसली। तो आप एक नोट कर सकते हो, एक डाउट्स की एक लिस्ट बना सकते हो, और फिर आप दूसरे दिन जब भी सर अवेलेबल हो यू कैन क्लियर द डाउट्स। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है कि अब आंसर्स कैसे लिखें। तो एक मैं हर चीज़ में एक ही पैटर्न फॉलो करती हूँ कि अगर आंसर लिख रहे हो तो जितना आता है उतना ही लिखो, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये है
कि अगर एक आंसर लिख रहे हो तो की वर्ड्स को हाईलाइट कर दो, मेन वर्ड्स जो हैं उसको हाईलाइट कर दो, जिससे वो पूरे आंसर को एक रिप्रेजेंट कर दे कि हाँ, अभी ये सपोज कोई एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो वो ऑब्वियसली आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ने वाला है। तो जितना वो, अगर आपने उसको अंडरलाइन किया होगा तो वो अगर वो पढ़ लेगा तो उसको इतनी श्योरिटी आ जाए कि हाँ, ये पढ़ने वाला बच्चा है, तो अब मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है पेपर चेक करने में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ के साथ अंडरलाइन करोगे और बात के लिए छोड़ोगे तो ऑब्वियसली किसी की इतनी स्पीड नहीं होती है। और एक टाइम मैनेजमेंट बहुत मेन चीज़ है कि इतना सेक्शन ए को इतना टाइम देना है तो फिर उतना ही देना है। अगर सपोज कि उससे ज़्यादा अगर टाइम डिवोट हो रहा है तो फिर वो आगे के सेक्शंस में प्रॉब्लम देगा। तो इससे बेटर है कि एक टाइम मैनेजमेंट पहले से ही बना के जाओ कि भाई मुझे 10 मिनट सेक्शन ए बी को देनी है। अब आगे के क्वेश्चंस, अगर कोई सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट कर दो। और एक ही क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे स्टिक रह गए ना, ये चीज़ अकाउंट्स में बहुत होती है कि हमारा सपोज कि फाइनल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है या कोई एडमिशन या रिटायरमेंट टैली नहीं हो रहा है, तो हम उसी चीज़ में पड़े रहते कि अब क्या करें, एडजस्टमेंट्स देखते रहते हैं ये वो। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। मेरा भी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था कि वो नहीं हुआ था टैली। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर आपके पास टाइम बचेगा। अगर आपने टाइम मैनेज अच्छे से किया है तो ऑब्वियसली टाइम बचेगा। मेरे पास बचता था, तो मैंने क्या किया कि जो टैली नहीं हुआ है वो बाद में आप टैली कर सकते हो। उसके बाद भी अगर टाइम बचे, यू कैन डू द ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स ऑब्वियसली सेक्शन ई में नहीं हो पाएंगे, पर अगर सेक्शन सी और डी में टाइम बच रहा है तो थोड़े बहुत 1-2 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, मार्क्स मिलते हैं। बट एक मेन चीज़, मेन गलती ये है कि मैं करती थी कि मेरा अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह जाता था तो मैं पीछे से लिखती थी पूरा पेपर खत्म होने के बाद। तो ये चीज़ वो कोई आंसर तुम्हारा फिर चेक नहीं करेगा। अगर एक कोई सेक्शन चल रहा है, अगर आपको उसका एक्स्ट्रा लिखना है तो फिर वो उसी सेक्शन में लिखो। फिर अगर सेक्शन डी में अगर हम सेक्शन सी का लिखेंगे तो फिर कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। ये चीज़ है। बाकी तो जितनी मेहनत की है उतना ही उस पे फोकस करो। कुछ ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बोर्ड की एग्ज़ाम्स है, हमने भी उससे हमने सफ़र किया है, आपको भी करना है। तो बाकी मेरी यही एडवाइस है। थैंक यू। પર્સનલ એક્સપિરિયન્સીસ શેર કર્યા છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જેને જે સબ્જેક્ટ્સમાં ડાઉટ હતા, જે રીતે એ લોકોએ ટેકલ કર્યા છે, ટાઈમ કઈ રીતે મેનેજ કરવો, ફૂડ પર, હેલ્થ પર કઈ રીતે ધ્યાન આપવું, છેલ્લા 20 દિવસમાં કે 15 દિવસમાં કઈ રીતે તૈયારી કરવી, એની બધી જ ડિસ્કશન થઈ ચૂકી છે. પણ તોય છતાં તમારા મનમાં કંઈક ને કંઈક નાના મોટા ડાઉટ્સ હશે જ, બરાબર? તો હવે જેને જેને જે પણ પ્રશ્ન હોય ફટાફટ શરૂઆત કરી દેશો, કે જેથી મતલબ હા, પાછું શરમાનું નહીં અને બધું પેલી રીતે બી નહીં કરવા જવાનું કે વ્યવસ્થિત રીતે પૂછવું. જે મનમાં આવે સીધે સીધું પૂછી નાખો. બધા ડાઉટ સોલ્યુશન કરવા માટે તમારા માટે ઊભા છે, બરાબર? ચલો. मुझे एक डाउट है कि जो ऑरकॉम होता है ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे स्टाफिंग्स और वो सारे चैप्टर्स, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसको लर्न भी मैं कर लेती हूँ, उसको एक बार लिख भी लेती हूँ अगर ऐसा लगता है तो कि ये नहीं आएगा। पर उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आता है तो फिर उसमें पॉइंट्स याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा तो इसको ऑप्शन में छोड़ना पड़ता है, पर ऐसा लगता है कि अब ये नहीं आ रहा तो मैं छोड़ रही हूँ। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए तो देखो, जब भी तुम रिमेंबर करते हो तो कॉन्सेप्ट से करो, क्योंकि ये सारी प्रोसेस होती है। तो ऐसे प्रोसेस, जैसे प्लानिंग कर रहे हो, तुम रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो पूरी प्रोसेस होती है उसी में। तो तुम ऐसे याद रखोगे एज अ प्रोसेस तो आराम से याद रह जाएगा। बाकी निमोनिक्स तुम बना सकते हो अपने हिसाब से, हमने भी बनाए थे, तो वो ट्रिक से तुम करोगे तो भी तुमको याद रह जाएंगे। और चलो ठीक है, बोर्ड में कभी कभी पैनिक हो जाते हैं तो याद नहीं रहता, तो जितना आता है उतना तो लिख लो। ऐसा पूरा छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। थोड़ा लिखोगे तो थोड़े तो मार्क्स मिलेंगे। और मेरी पर्सनल एडवाइस है कि तुम निमोनिक्स बना दो, ट्रिक्स बना दो, फ्लो में याद रखो तो याद रह जाता है। आई हैव एन क्वेश्चन फॉर यू कि जैसे कि अब एग्ज़ाम इतनी नज़दीक है, तो मतलब कि इतना क्रुशियल टाइम है, 20 डेज़ ही हमारे लिए, मतलब 20 डेज़ भी बहुत कम ही बचे हैं। तो हम ये 20 डेज़ को कैसे डिवाइड करें, कैसे सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें, और कैसे स्लॉट्स में डिवाइड करें या आवर्स में डिवाइड करें? कि अभी 8 सब्जेक्ट्स है तो उनके साथ डील करना अभी इस टाइम पे थोड़ा सा एक टेंशन आ जाता है कि कैसे करें। यू कैन डू कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, एक प्रैक्टिकल हो गया, एक थियोरेटिकल हो गया, और फिर ऐसे भी एक ABC कैटेगरी में डिवाइड कर दो कि इसको मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है तो फिर मैं इसको ज़्यादा टाइम दूंगा। अब जैसे कि सपोज़ कि तेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो अकाउंट्स को दे, पर जैसे कि एक दिन में 2 घंटा हो गया, दैट्स इनफ। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को, आजकल लोगों को लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है तो उसमें टाइम डिवोट करना चाहिए ज़्यादा। राइटिंग प्रैक्टिस करो तो आराम से डील हो जाएगा। आई हैव ऑल्सो ए क्वेश्चन दैट कि अभी हमने सभी, आप लोगों ने भी आपके टाइम पे ये चीज़ फेस की होगी कि अभी हमने सब चीज़ पढ़ ही ली है
और इतनी 3-4 बार एग्जाम हुई तो सब चीज़ ऐसा लगता है कि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन जब वापस पढ़ते हैं ना तो सब मिक्सअप हो जाता है। और इतनी बार एक ही एक चीज़ पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ आती है, लेकिन बाद में ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ मतलब कुछ मिस्ड आउट है। तो इस चीज़ से हम कैसे डील करें? मतलब आपने हर चीज़ परफेक्ट कर ली है, मतलब फिर आपको देख के ऐसा लगता है कि ये हमारा नहीं हुआ है, यही ना? तो मेरी ये एडवाइस है कि अब उस चीज़ को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, वापस देख लूँ। आप जब एग्ज़ाम टेस्ट दोगे ना, आपको चीज़ अपने आप क्लिक होगी कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, अब मैं ये लिख देता हूँ। ऐसे अब वापस वापस उस चीज़ को रिवाइज करने मत बैठो। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। मैंने किया था और मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने सर से ऑब्वियसली पूछ लिया था। तो मैंने उस चीज़ को जब ज़्यादा फोर्स मत करो, हो गया एक बार, अब छोड़ दो उसको। और जब एग्ज़ाम टेस्ट होगा, सर ने आपको फॉर दी वर्स्ट प्रिपेयर किया कि हार्ड में हार्ड ये पेपर अब बन सकता है। बोर्ड का पेपर इसके लेवल का कुछ नहीं होगा, बहुत इजी पेपर होता है। और तो मेरी एडवाइस है कि उस चीज़ को बार बार रिवाइज करने मत जाओ। अब हो गया हो तो छोड़ दो, बार बार ये मत करो। अगर कोई टॉपिक आपका रह गया हो वो करो, बार बार उसको करने की जरूरत नहीं। ગુજરાતીમાં ગ્રામર સેક્શનમાં કેવી રીતે માર્ક્સ વધારે લાવવા? પહેલાં તમે જે બુક છે ને એના પાછળનું જે બી ગ્લોસરી ને બધું જે આપેલું છે એ કરી દો. મેજોરિટી કેસીસમાં એ લોકો એમાંથી પૂછશે, બટ દેર આર ચાન્સ એ લોકો ડાયજેસ્ટમાં બી એમાંથી બી પૂછે. તો યુ હેવ ટુ રિવાઇઝ ઓનલી. લાઈક કેવું થાય છે કે નથી યાદ નથી રહેતું કે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? યાદ નથી રહેતું. ઓકે, કીપ રિવાઇઝિંગ, બિકોઝ એમાં કંઈ કન્સેપ્ટ છે નહીં, કંઈ લોજિક છે નહીં, તમારે યાદ જ રાખવું પડશે. અને જે પેલા ચેપ્ટર્સ હશે સૌરાષ્ટ્રવાળા, એમાં વધારે પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે. મેક શ્યોર એમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, બટ ઓવરકમ કરવાનું રીઝન એ જ છે કે કીપ રીડિંગ અને મેક શ્યોર કે એમાં તળપદા જે શબ્દો હોય એ તમે વ્યવસ્થિત કરો, बिकॉज એમાંથી ચાન્सेस વધારે છે કે એ પૂછાય. मेरे को एक डाउट है कि जैसे 2 और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसके आंसर है ना कम होते हैं। मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है ना 4 लाइन या 5 लाइन, लेकिन उतने वो आंसर ही नहीं होते, तो वो कैसे किया जाए? 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 2-3 पॉइंट या मैक्सिमम 4 पॉइंट्स इनफ होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर राइटिंग करोगे ना तो फिर वो मार्क्स कट करेगा ही। 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है उसमें 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स इनफ है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 1.5 पेज इतना इनफ होता है, क्योंकि अभी सपोज कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, या एक मतलब कि मैंने वो देखा ही नहीं कभी, तो फिर उसके रिलेटेड कुछ है तो उसमें 3-4 पॉइंट्स लिख दो, मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि वो लोग नहीं तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं कि तुमको कितना कॉन्सेप्चुअल कितना पता है। तो इसलिए कि जितना आता है उसके रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वो लिख दो, मार्क्स मिलेंगे। हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट आते हैं, तो हम 5 सब्जेक्ट में तो कवर कर लेते, लेकिन लैंग्वेज में हमारे परसेंटेज गिर जाते, मतलब लास्ट में कुछ। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રેઝન્ટેશન મસ્ટ, બિકોઝ એ લેંગ્વેજ છે તો એ લોકો તમારી પ્રેઝન્ટેશન ફોર શ્યોર જોશે. સો રાઇટિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરો, લાઈક યુ નો નીટ એન્ડ ક્લીન રાખો. બહુ ચેકચાક હશે તો ઇમ્પ્રેશન ખરાબ પડશે. એ લોકોનો રૂલ છે કે તમને 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન તો 3.5 જ આપે એન્ડ ઓલ. ટ્રાય ટુ બી એક્યુરેટ જેટલું તમે લખો છો. ગ્રામર સેક્શન બહુ ફાઇન કરીને જાઓ, બિકોઝ એમાં એ લોકોની તાકાત નથી કે તમને કાપી શકે, બરાબર છે? સો રાઇટિંગ સેક્શનને આપણે એક સાઈડ પર રાખીએ કે ચલો હેન્ડ રાઇટિંગમાં પ્રોબ્લેમ છે ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ, ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક્સ લોકો નીકાળશે, બટ એવા જે ક્વેશ્ચન્સ જે તમારા ટેક્સ્ટમાંથી છે તો એને એક્યુરેટ લખવાનો ટ્રાય કરો. ગ્રામરમાં તો પૂરેપૂરા આવવા જોઈએ, એ તમારો બેસ્ટ ટ્રાય હોવો જોઈએ, તો જ યુ કેન રીચ ટુ દેટ પોઈન્ટ. ઓકે, आई हैव वन मोर डाउट कि मतलब कि जैसे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें और उसका एंड अप कैसे हो, और उसके साथ साथ जो अभी प्रेशर है जो मतलब कि लास्ट में तो मतलब कि गाला करो, लिबर्टी करो, या जो भी पैम्पलेट्स वगैरह मिले वो करो, या टेक्स्ट बुक प्रीफर करें, तो उसके बारे में। तो इसके लिए तो जैसे कि मैंने बोला कि लैंग्वेज में तो प्रेजेंटेशन तुम्हें सर ने बताया ही होगा कि ऐसे ऐसे लिखो, और जितना मांगा है उतना लिखो. प्रेशर है कुछ भी है, बट जितने मार्क्स का वेटेज है उतना रेलेवेंट लिखो. ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, अंडर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट लिखो. लैंग्वेज में तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर ने बोल दिया होगा. बाकी ओसी है, इको थियरी सब्जेक्ट्स है, इसके लिए मैंने तो ये एक पैटर्न ही बना दी थी कि जैसे कि सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी है कि एक पेज के अंदर 2 आंसर आ जाने चाहिए, इतना तुम्हारा होना चाहिए. सेक्शन डी है तो पूरा एक पेज हो जाना चाहिए, पूरा एक पेज तुम्हें कवर करना है. एंड सेक्शन ई है उसका 1.5 या 2 पेज. बस ये एक आइडियल पैटर्न है जो तुम्हें फॉलो करनी होती है. इसमें ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिखो, रेलेवेंट है उतना लिखो, अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुम कम लिखो, बट ओवर राइटिंग करो, ऐसा कुछ करो प्रेशर में, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे. तो ये नहीं करना है.
ઘણીવાર ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટમાં એવું થાય છે કે લાસ્ટ જે સેક્શન છે સેક્શન એમાં એસે છે, એપ્લિકેશન રાઇટિંગ છે, ઈમેલ છે, એમાં ઘણું કરવા છતાં પણ માર્ક્સ કટ થાય છે. તો એવા તો શું ટિપ્સ અપ્લાય કરવા જોઈએ કે પ્રેઝન્ટેશન એવું શું કરવું જોઈએ કે જેમાં માર્ક્સ હજુ વધારે થાય? सेक्शन ई तो लैंग्वेज में एक ऐसा पार्ट है जहाँ आपको फुल मार्क्स नहीं देगा कोई, आधा मार्क 1/4 कटेगा ही. तो एक ईमेल राइटिंग एडवर्टीजमेंट आपको आता है, ईमेल एडवर्टीजमेंट, और ईमेल एडवर्टीजमेंट में बॉक्स एक तो बना देना. और ईमेल मतलब ईमेल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. ईमेल ज़्यादा बड़ा होता है तो बहुत फ्लेकी एंड ऑल वैसा लगता है. तो ईमेल या तो मैक्स 1 पेज का लिखो या तो आधे पेज का, बिकॉज ईमेल्स प्रैक्टिकली भी आपने देखे होंगे छोटे ईमेल्स ही होते हैं, कोई बड़ी ईमेल्स नहीं दिखता. तो ईमेल्स में एक फॉर्मेट, एक सर ने आपको जो फॉर्मेट बताया वो भी फॉलो करना. और टू फ्रॉम वो सब होता है, उसको मिक्स मत कर देना, मतलब रीअरेंज मत करना. एक फ्लो होता है टू फ्रॉम का भी, वो फ्लो कंसिस्टेंट रखना. और बस ये टिप फॉलो करना. बट सेक्शन ई में मार्क्स तो आपको फुल नहीं मिल सकते, बिकॉज लैंग्वेज में मार्क्स इस सेक्शन में तो मैक्स कटते हैं. तो बस ये फॉर्मेट आप फॉलो करना, आपको मैक्सिमम मार्क्स उसमें वो दे देंगे. સો 12થની એક્ઝામ જે છે એ મેઇનલી 3થી લઈને અમારે 6:30નો ટાઈમ છે. તો એની અંદર એ વાળો ડાઉટ રહે છે કે અમે આખા વર્ષ તો કર્યું પણ એક દિવસની અંદર બધું કેવી રીતે કરવું. લાઈક આપ બધાએ કર્યું હશે તો આપણને ખ્યાલ હશે કે 10થની અંદર મોર્નિંગનો ટાઈમ હતો તો આપણને ખબર છે કે એટલા સમય સુધી જ વાંચવાનું છે. ને 12થની અંદર એવું નથી, 3 વાગ્યા સુધીનું છે તો આપણને એવું થાય કે હા જેટલા સુધી મેક્સિમમ એક્સટેન્ડ સુધી થાય ત્યાર સુધી વાંચ જ કરીએ. તો તમે કેવી રીતે આને ટેકલ કર્યું હતું ને અમારે માટે તમે શું કહેવા માંગો છો? ઇટ્સ રૂલ જ રાખવાનો કે 1 કલાક પહેલાં બુક બંધ થઈ જશે. ટ્રાય ટુ મેક યોર સેલ્ફ કામર, મેડિટેશન ઓર સમ ટેકનિક્સ યુ કેન યુઝ. અને 1 કલાક પછી લાઈક 6 વાગ્યાથી લઈને બીજા દિવસ સુધી પછી રેપિડ રિવિઝન. મતલબ ઇફ યુ આર સ્કોરિંગ 85 that means you have covered enough syllabus, you have revised enough. Okay, so now just look at the bullet points only. ઇકોનોમિક્સ છે તો બસ ઇફ ધ પોવર્ટી, સોલ્યુશન ઓફ પોવર્ટી એન્ડ ઓલ, અંદરનું કન્ટેન્ટ તને ખબર છે, એ વાંચવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે ખાલી તારે બુલેટ્સ પોઈન્ટ વાંચવાના. સો એ ક્વેશ્ચન તારો 30 સેકન્ડમાં પતી જશે. સો યુ કેન રિવાઇઝ અકોર્ડિંગલી. બધું રેપિડ કરવાનું, બિકોઝ તમે બધું વાંચવા જશો તો પૂરું બી નહીં થાય. ઇધર યુ કેન ડુ વન થિંગ કે ઇફ યુ આર વેરી મચ કોન્ફિડન્ટ ઇન સમ ચેપ્ટર્સ કે તો એટલા બધા સારા આવડે છે કે હું નહીં જોઉં ને તો બી ચાલશે, સો દેટ્સ ફાઇન. ઇટ્સ ઓન યુ કે એ છોડી દો, મતલબ એને ના જોવાના, ઓર મે બી એના બુલેટ્સ પોઈન્ટ કરી દો. અમુક ચેપ્ટર્સ એવા છે કે જેનું કન્ટેન્ટ મને નથી ખબર, તો એકાદ નજર મારી દેવાની ઉપરથી, જેથી रिकॉल થઈ જાય, પછી તારા વર્ડ્સમાં તું લખી શકે છે. मेरा क्वेश्चन मित भाई से कि हमारा एग्जाम में 3 घंटे होते हैं तो कई बार इको और ऑर्को में टाइम छूट जाते हैं, तो हम पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? पेपर में देख स्टार्टिंग मतलब 15 मिनट पहले पेपर अपने को मिल जाता है, तो जो सेक्शन ए और बी है तो 15 मिनट में पूरा हमको कुलदीप सर ने मतलब ट्रिक सिखाई थी कि मतलब पेंसिल रखो अपने साथ, और जो सेक्शन ए है ना सेक्शन ए है ना उसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं ना तुमको पता चल जाएगा कि भाई ये राइट आंसर है सारे. उसमें तू ऐसे कर ले कि मतलब एक हल्का सा डॉट बना ले कि ताकि जब लास्ट में जब तुझे लिखना हो ना तो पता है कि यही आंसर मुझे लिखने हैं. ठीक है, तो सेक्शन तेरा सेक्शन ए और बी तू दोनों 15 मिनट में कवर कर सकता है पूरा, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इस तरीके से पूरा सेक्शन ए भी हो जाता है. फिर सबसे बड़े सेक्शन कौन से बचते हैं? 5 मार्क्स वाले, और ऐसे मतलब ई बचता है. तो सपोज तेरी राइटिंग स्पीड अच्छी है ना, तो तू राइटिंग स्पीड अच्छी है तो पहले जो बड़े मार्क्स वाले आंसर है ना वो एकदम अच्छे फ्रेम करके लिख दे तो देखो उसमें ज्यादा मार्क्स तू कवर कर पाएगा. ठीक है, उसके बाद डी ई लिखा, फिर उसके बाद डी में कितने मार्क्स मिलते हैं? 1 मार्क, और सी में 2 मार्क. तो सी मेरे ख्याल से लेंथी होता जाता है ना, तो पहले सी लिखने का, तो क्या उसमें सारे क्वेश्चन कवर तुम कर सको, और फिर डी की तरफ जाने का. ए और बी तुमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो इस अप्रोच से चलेगा ना. राइटिंग स्पीड भी कंटिन्यूसली तेरे को ऐसे रखने की, यूं नहीं कि एक सेक्शन लिख दिया फिर फ्री हो गया, इस तरीके से नहीं. पूरा जिस टोन में तू पहले से लिख रहा है उस टोन में तू एंड तक लिखेगा ना, तो सारे पेपर तेरे एकदम एकदम सही टाइम पे खत्म कर सकेगा, और साथ में चेकिंग भी कर सकेगा उसके साथ. इस तरीके से चलेगा अगर ऐसा हो तो सेक्शंस को एक टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देने का. सेक्शन ए बी आधे घंटे में, ई मतलब 45 मिनट्स 1 घंटा जो भी, और सी और डी में फिर ज़्यादा, फिर जितना टाइम बचा सी डी में ही डाल देने का. फिर अगर टाइम बचा तो चेक करने का, नहीं बचा तो फिर जाने देने का. बट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दोगे तो पेपर अच्छे से पूरा हो जाएगा. सब्जेक्ट की बात कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा? गुजराती, इंग्लिश, वैसा
इकोनॉमिक्स और कॉम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आगे हर क्वेश्चन में हाँ 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 मतलब अगर आप तुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये इसमें फिर इसमें स्टार्ट कैसे करना है फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, फिर आप जो प्लानिंग का जो हेड पॉइंट है ना उसको लिख के अंडरलाइन, फिर उसका कंटेंट मैक्स टू मैक्स 3 सब पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें ओवर राइटिंग नहीं करने की, फिर वो हर एक हेड पॉइंट को अंडरलाइन करना, ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है इकोनॉमिक्स और ऑर्कॉम में। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा सब पॉइंट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ पैराग्राफ्स ही होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में मतलब कैसा, इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं होती, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब प्रेजेंटेशन लगती है। तो इकोनॉमिक्स ऑर्कॉम में किए, ऑर्कॉम में पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को अंडरलाइन करते जाए, और एक ये है कि सब पॉइंट्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना तो उसको भी अंडरलाइन कर देनी, क्या कि एग्जामिनर चेक करने वाले का मेन ध्यान उसी पे जाए और लगे कि आपका आंसर करेक्ट है। और इंग्लिश और गुजराती में तो वही पैराग्राफ वाइज आंसर लिखने का, इंट्रोडक्शन, मेन एंड देन कंक्लूजन। और अभी आपके 20 दिन बचे हैं, वो आपने पूछा था, मेरी यही टिप है कि बस अब 20 दिन बचे हैं ना तो अब कंटेंट बुक का मत पढ़ना, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखना कि किस टाइप के वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं पास पेपर में। अगर कोई उल्टा कोई क्वेश्चन दिख जाए कि ये थोड़ा डाउट है तो फिर आप बुक रिफ़र करो कि इसका आंसर हम क्या कैसे लिखेंगे। बट मेरी एडवाइस यही है कि अब बुक फॉलो मत करना, अब तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने का ही टाइम है, एक MCQ और एक वो 1 लाइन आंसर्स, उसके लिए तुम देख लेना। और बाकी जो 3-4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसके लिए अब वापस बुक मत पढ़ना, वो सिर्फ क्वेश्चंस देखना हो किस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं, मेन तो A और B के लिए ही करना बस। કીધું જે લોકો સ્ટાર્ટિંગથી એવી રીતે પ્રિપેરેશન કરી છે એ લોકો આ મેથડ ફોલો કરજો. હુએવર from the very first day they are referring book only, not seeing any other material, એ લોકો બુક જ કરજો. ડોન્ટ ગો ફોર એની ગાલા એન્ડ લિબર્ટી, બિકોઝ ત્યાં તમને નવું કન્ટેન્ટ મળશે, તમે પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. મેં બુક જ કરેલી બધા સબ્જેક્ટમાં, OCMમાં બી લાઈક ઇટ વોઝ મેં બુક જ કરેલી, તો એની પર તમે સ્ટીક રહેશો ને તો ઇફ સમહાઉ ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટ બી થાય છે ને, ટ્વિસ્ટ કે એક જ રીતે થઈ શકે કે એમને મેઇન ટાઇટલ સિવાય અંદરમાંથી કોઈ કન્ટેન્ટમાંથી ક્વેશ્ચન બનાવી દીધો હોય. ઓકે, સો તમે બુક વાંચેલી હશે, તમને ખબર છે આ ક્વેશ્ચનમાં આ લાઈન આવે છે, બસ મારે આનો જ આન્સર લખવાનો છે, સો ઇટ વુડ બી સોર્ટેડ. ઓકે, બરોબર છે. એમાં મેજોરિટી ઓફ ધી ક્વેશ્ચન્સ કવર થઈ ગયા, જે છોકરાઓ જે આપણા સ્ટુડન્ટ્સે પૂછ્યા એમાં મેજોરિટી ઓફ ધ ક્વેશ્ચન્સ પૂરા થઈ ગયા. એનું જે આઉટકમ છે એ જ છે કે આપણે ફિટનેસ પર ધ્યાન આપવાનું છે, બરાબર છે, પેનિક થવાનું નથી, કેમ કે એ સિચ્યુએશનલ બેઝ છે, બરાબર છે. પેનિક થશો તો નુકસાન આપણું જ છે, એટલે એ પેનિક પાછળથી થોડું આપણા માટે થોડું વધારે થઈ જશે. બેટર છે કે બહુ કામ આપણને એવું લાગે, મેં ઘણીવાર એવું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે નિયતિનું કે એનું પેપર હતું અકાઉન્ટ્સ અને વાંચતી હતી ઇકોનોમિક્સ જસ્ટ 5 મિનિટ્સ બિફોર ધી એક્ઝામ. ઠીક છે, તો સપોઝ કે તમારું હવે કોઈ કન્ટેન્ટ થઈ ગયું છે તો એના ઉપર વારે ઘડી હવે ટાઈમ આપવાની જરૂર નથી, બરોબર છે. અને બહુ સ્માર્ટલી યુઝ યોર અનયુઝડ બ્રેન, બરોબર છે, તો બધી જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આવી જશે. ક્લિયર છે? ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ ટુ ઓલ ધ અચીવર્સ, બરોબર છે. અને તમારા લોકોના ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ ગયા હશે એવું હું માનું છું. સ્ટીલ અગર કોઈના કોઈ ડાઉટ્સ છે, બરોબર છે, તો અત્યારે છે આપણી સાથે, તમે એમની સાથે પૂછી શકો છો. તમને અત્યાર સુધી શરમ આવી હોય, લજ્જા આવી હોય તો ભલે 1-to-1 1-on-1 તમે આવીને એમને ડાઉટ્સ પૂછી શકો છો. બાકી આપણે ઘરે જઈ શકીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ.